आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में अपन किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे आज अपन? स्केलेटल सिस्टम में आज अपन जो बोन है उसका जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है उस पे क्या है अपन आज डिस्कस करेंगे। तो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन ने जो लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था, जिस टॉपिक के बारे में स्टडी की थी, उसको एक बार फिर से क्या है रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने स्पंजी बोन के बारे में डिस्कस किया था, बोन सेल के बारे में डिस्कस किया था, ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है, ओस्टियोसाइट्स क्या होते हैं और ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है, इनके बारे में क्या है अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो जो अपना बोन की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन इन टॉपिक्स को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इनको समराइज कर लेते हैं। तो जो कैनक्लेस बोन है, स्पंजी बोन है, उसको क्या है टू द नेक्ड आई स्पंजी बोन लुक लाइक ए हनी कैम। कैनक्लेस बोन जो है वो किसकी तरह दिखती है? एक हनी कैम की तरह क्या अपने को नेक्ड आई से व्यू होती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन रिवर्स ए फ्रेमवर्क फ्रॉम द मीनिंग ऑफ लिटिल बीम which consists of a few lamella and osteocytes interconnected by canculi। ये क्या है, किससे कंसिस्ट होती है? लैम्पली से क्या है कंसिस्ट होती है, ठीक है। और इंटरकनेक्टेड किससे रहती है? कैनकुलाई से क्या है इंडिया इंटरकनेक्टेड रहती है। द स्पेस बिटवीन द tubercules consist contain the space between the tuberculi contain red bone marrow that narrows by osteocyte। किसकी वजह से ये नैरोइस रहती है? ओस्टियोसाइट्स की वजह से क्या है ये नैरोइस रहती है। नेक्स्ट अपना है बोन सेल। The cell responsible for bone formation are osteoblasts. This later mature in osteocytes. The cell responsible for bone formation are osteoblasts. Osteoblast and chondrocytes, cartilage forming cell। chondrocyte क्या है? cartilage forming cell है। develop from the same parent fiber tissue cell। दोनों के दोनों क्या है? सेम जो parent fiber tissue है उनसे बनी हुई रहती हैं। Differentiation into osteogenic cell rather than chondroblast is believed to depend upon a adequate oxygen supply। Differentiation क्या है इन osteocell में? believe the depend upon the adequate oxygen supply। This may be factor affecting healing of fracture, like if the oxygen supply is sufficient, there may be a preponderation of chondroblast resulting in the cartilaginous units of the fracture। नेक्स्ट है ओस्टियो
osteoblast. These are the bone forming cells that secrete collagen and other constituent of the bone tissue. They are present in the deeper layer of periosteum, in the centers of the ossification of immature bone, at the end of the diaphysis adjacent to the epiphysis cartilage of long bone at the site of fracture. ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? दीज आर द बोन फॉर्मिंग सेल. ये क्या होती है? बोन फॉर्मिंग सेल होती है. एंड अदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द बोन, दे आर प्रेजेंट. अदर क्या है? इन डीपर लेयर ऑफ पेरियोस्टम, इन द सेंटर्स ऑफ द ossification of immature bone, at the end of the diaphysis adjacent to the epiphysis cartilage of long bone at the site of a fracture. नेक्स्ट है ओस्टियोसाइट्स. एज बोन डेवलप, osteoblasts become trapped and remain isolated in lichens. They stop forming new bone at the stage and called osteocytes. The osteocytes are nourished by tissue fluid in the caniculi that radiate from the Haversian canal. Their functions are not clear, but they may be associated with the movement of calcium between the bone and the blood. तो ओस्टियोसाइट्स क्या है? एज द बोन डेवलप, ओस्टियोब्लास्ट बिकम ट्रैप्ड एंड रिमेन आइसोलेटेड इन लिग्नी. दे स्टॉप फॉर्मिंग न्यू बोन एट द स्टेज एंड are called osteocytes. Osteocytes are the nourished by tissue fluid in the caniculi that radiate from the Haversian canal. Their functions are not clear, but they may be associated with the movement of calcium between the bone and the blood. नेक्स्ट है osteoclast. Their function is reabsorption of bone to maintain the optimum shape. This takes place at bone surface under the periosteum to maintain the shape of the bone during growth and remove excess calculi from the during healing and fracture. क्या होता है? अगर एक्सेसिव हो जाता है तो क्या है, ये रिमूव करता है, और अगर कमी रहती है तो क्या है, उसको शेप प्रोवाइड कराता है. राउंड द वॉल ऑफ द मेडुलरी कैनाल ड्यूरिंग ग्रोथ एंड द कैनकुलाई ड्यूरिंग
cancelize calculus during healing. A fine balance of osteoblast and osteoclast activity maintain normal bone structure and function. Osteoclast क्या करता है, अगर बोन के अंदर एक्सिस है तो उसको क्या है, रिमूव करता है, और अगर कम है तो क्या है, उसको मेंटेन करता है. नेक्स्ट आज क्या है अपना, डेवलपमेंट ऑफ बोन टिश्यू, ओस्टोजेनेसिस और ओल्सिफिकेशन. ये क्या है आज का अपना टॉपिक है. दिस बीइंग बिफोर बर्थ एंड इट्स नॉट कंप्लीट अंटिल अबाउट द 20 ईयर ऑफ लाइफ. ये क्या है, अपने जन्म के बाद से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, 20 ईयर तक क्या है, ये कंप्लीट होता है. Long, short and irregular bone develop from the rod of cartilage model. Flat bone develop from the membrane model and sesamoid bone from the tendon model. Bone develop consist of two process. तो क्या है, बोन टिश्यू जो है, डेवलपमेंट जो होता है बोन टिश्यू का, वो कब होता है, अपने जन्म के बाद, सॉरी, बिफोर बर्थ, जन्म से पहले, एंड दैट इज नॉट कंप्लीट अंटिल अबाउट द 20 ईयर ऑफ लाइफ. लॉन्ग बोन, शॉर्ट एंड इरेगुलर जो है बोन है, वो डेवलप कौन से कार्टिलेज से होती हैं, रोड कार्टिलेज मॉडल जो है उससे होती हैं. जो फ्लैट बोन है वो कौन से होती हैं, टेंडन मॉडल से होती हैं. ठीक है, और जो अपनी फ्लैट बोन डेवलप होती है किससे होती है, मेम्ब्रेन मॉडल से. सिस्मोइड बोन होती है वो किससे, टेंडन मॉडल से क्या है, वो डेवलप होती है. This being before birth and is not complete until about the 20 ईयर ऑफ एज. जन्म से पहले से लेके जब एम्ब्रियो बनता है वहाँ से लेके और जब तक अपन अपने जो लाइफ के 20 ईयर जो कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक क्या है, अपनी जो ग्रोथ है वो कंप्लीट नहीं होती है. लॉन्ग, शॉर्ट एंड इरेगुलर बोन डेवलप फ्रॉम द रोड ऑफ कार्टिलेज मॉडल. जो लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है और इरेगुलर बोन है, वो कौन से कैसे होती हैं, जो रोड कार्टिलेज है उससे क्या है, डेवलप होती हैं. और इनका मॉडल कौन सा होता है, कार्टिलेज मॉडल होता है. सेकंड आता है अपना फ्लैट बोन डेवलपमेंट. फ्लैट बोन डेवलपमेंट कैसे होता है, मेम्ब्रेन मॉडल से. नेक्स्ट अपना आता है सिस्मोइड बोन. सिस्मोइड बोन किससे होती है, टेंडन मॉडल से. बोन डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस. जो बोन का जो डेवलपमेंट है वो कितनी प्रोसेस में होता है, दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है. द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग बोन. ये क्या है, स्टेज है किसकी, लॉन्ग बोन के जो डेवलपमेंट की है वो क्या है, स्टेज है.
स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग बोन। ये क्या है? फीटल डेवलपमेंट है। इसके अंदर क्या है? रोड कार्टिलेज है, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन है, बोनी कॉलर दिखाई गई है, ठीक है। और ये क्या है? डायफाइसिस है। ये किस में होता है? फिटल में होता है। ये क्या है? चाइल्डहुड और एडोलिसेंस के अंदर होता है। तो ये किस टाइम का है? बर्थ। और ये किस कौन सी एज है आपकी? चाइल्डहुड एंड एडोलिसेंस की एज है। और ये क्या है आपकी? एडल्ट की। तो जब बर्थ के जो टाइम पे है उस टाइम पे क्या है? दो दिखाए गए हैं। कौन से? सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन एंड एपिफाइसिस। और चाइल्डहुड और एडल्ट के अंदर क्या है? ये हाइलाइन कार्टिलेज है, ये डेवलप हो गए, ठीक है। ये जो कैनकुलस बोन है ये इसके अंदर कम होती है, जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे बढ़ती जाती है। ये क्या है आपकी? कॉम्पैक्ट बोन, यहाँ पे इमेच्योर है, ये मैच्योर हो गई। ये मेडुलरी कैनाल है, ठीक है। ये पेरियोस्टम दिखाया गया है इसमें। ये क्या है? एपिफिजियल कार्टिलेज दिखाया गया है। तो ये क्या है आपकी? ग्रोथ और डेवलपमेंट है किसका? लॉन्ग बोन का। ऊपर वाला किसका है? फिटस का। फिटस के बाद की जो ग्रोथ है वो आपकी ये दिखाई गई है। और वहां पे क्या है आपकी? फिटस की ग्रोथ दिखाई गई है। नेक्स्ट क्या है? Serotonin by the osteoblast of osteoid collagen fibers is a mucopolysaccharide matrix which gradually replaces the original cartilage and membrane model. Calcification of osteoid immediately after this deposition. Calcification कब होता है? Calcification of osteoid immediately after this deposition. Deposit होने के बाद क्या है? ये immediately होता है। देर आर टू टाइप ऑफ एवरेजमेंट ऑफ कोलेजन इन ओस्टोइड। दो टाइप से क्या है यहाँ पे होता है? फर्स्ट क्या है? नॉन लैम्बर बोन। और सेकंड क्या है? लैम्बर बोन। वोवन कौन सी है? नॉन लैम्बर बोन होती है, ठीक है। और सेकंड क्या है आपकी? लैम्बर बोन होती है। तो जो कोलेजन का ऑस्टोइड जो है वो अरेंजमेंट उसका कितने टाइप से होता है? दो टाइप से होता है। कौन सा है? एक नॉन लेमर और फर्स्ट क्या है आपका? लेमर।
फर्स्ट क्या आपका नॉन लेमर बोन। नॉन लेमर बोन में क्या है, कोलेजन फाइबर आर डिपोजिट इन इरेगुलर बंडल देन ओसिफाइड। This primitive bone structure is part of normal fetal development, occur during ossification of bone that originate as membrane model, example skull bone. In adult is also present in bone tumor and healing fracture. तो नॉन लेमर बोन क्या है, कोलेजन फाइबर आर डिपोजिट इन इरेगुलर बंडल। ये क्या है, इरेगुलर बंडल के अंदर क्या डिपॉजिट हो जाते हैं, देन ओसिफाइड। दिस primitive bone structure is part of normal fetal development, occur during ossification of bone that originate as membrane model, example skull bone. In adult is also present in bone tumor and healing of fracture. नेक्स्ट क्या है, लेमर बोन। लेमर बोन में क्या है, द कोलेजन फाइबर आर डिपोजिट एज इन वन बोन originate into characteristic lemma found in compact and cancellous bone then ossified. This occur when cartilage model are replaced by bone in healing of fracture. ये कब होता है, दिस occur when जब कार्टिलेज मॉडल जो है वो क्या है, रिप्लेस हो जाता है किसके दौरान, बोन में, कब, और हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर, और बोन जो फ्रैक्चर है उसकी क्या है, हीलिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन का डेवलपमेंट। In long bone, the focal point from which ossification being are small areas of osteogenic cell or centers of ossification in the cartilage model. This is accompanied by development of a bone collar at about 8 week of gestation. Gestational एज की जो आपकी 8 वीक है तब क्या है, डेवलपमेंट होता है। Later the blood supply develop and bone tissue replace a cartilage as osteoblast secrete osteoid component in the shaft. The bone length as ossification continues and spreads to the epiphysis.
नेक्स्ट है अराउंड बर्थ सेकेंडरी सेंटर ऑफ द ओसिफिकेशन डेवलप इन द एपिफाइसिस एंड द medullary canal form when osteoclast break down the central bone tissue in the middle of the shaft. After birth, the bone growth in length by ossification of diaphyseal surface of the epiphyseal cartilage and growth is complete when the cartilage become completely ossified. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या होगा, हार्मोन रेगुलेशन ऑफ द बोन ग्रोथ। कौन से हार्मोन की रेगुलेशन होती है किस दौरान, आपकी जो बोन ग्रोथ है उसके अंदर कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके बारे में क्या है अपन जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।